नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो कर लो। When you सब्सक्राइब टू द चैनल। When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. नेशन नाउ, The fastest growing channel of the nation, Nation Now. द रियल पीपल्स चैनल। Yes sir. असल में आपका चैनल है। And to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. So Pradeep ji, amazing stuff. Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, I apologize. I forgot. It's You have to say okay. that. I'm really sorry. Now, so Pradeep ji, amazing stuff has happened. Davos mein, the CEO of the European Union, she actually said that within a couple of days I'm going to be traveling to India, and I'm going to be signing. Europe is going to be signing the mother of all deals with India. Yes. Mother of all deals. Is going to create a market of 2 billion people. Exactly sir. 2 billion consumers, 2 billion customers, which is amazing. Not bad for a dead economy, right? I mean, amazing stuff, absolutely amazing stuff is happening. Fadnavis ji there, it's like Tendulkar batting over there. Deals पे deal, MOUs पे MOUs, आज तक यानी within one day 15 lakh crore का उन्होंने already has $50 billion. 15 lakh jobs he has assured. The MOUs that he has signed is generating 15 lakh jobs here in Maharashtra. मेरा ऐसा हिसाब कि इसका अगर 10% भी हो जाता ना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, very frankly speaking. और 100% हो गया तो और भी अच्छा। अरे 100% हो गया तो बल्ले बल्ले सर, फिर तो मतलब ट्रिपल सेंचुरी, मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? It is absolutely amazing. But I'm really and truly excited about the European Union. The fact is, we've already got a free trade agreement with UK. You already have a free trade agreement with New Zealand. We are on the verge of a free trade agreement with Australia. And there is BRICS. और उसके अलावा what we have been talking about here for a long, long time. बिल्कुल। Russia, India, China. Russia, रूस, भारत और चीन. It makes a lot of sense if these three countries get together. That's it. Then you don't need the West. You don't need anybody. For God's sake, India and Russia constitute more than 30% of the world's population. And if Russia also joins in, that's it. After that, अरे ट्रम्प साहब आपको 5000% टैरिफ करने हैं या 10,000% करने करते रहो यार. Rahul Gandhi is up on it again. Modi is diverting resources. To whom? That is left a blank. Probably to the industrialist. One nation, one businessman. Obstructing protection of poor. जो गरीब को अब तक आपने कहा कि free ration क्यों दे रहे, all these kind of amenities. But like now you're strangulating the help given to the poor, Mr. Modi. And then the RSS and BJP is destroying the Gandhian legacy and ideology. The Gandhian legacy would be what? I don't understand. To keep the poor poorer? मतलब कि आप गरीब हैं वहीं के वहीं आप रहिए. हम लाइसेंस राज शुरू करेंगे, हम तय करेंगे टाटा ये गाड़ी बनाएगा, बिरला ये गाड़ी बनाएगा, डालमिया जी ये करेंगे और रुइया साहब ये करेंगे, सिंघानिया साहब ये करेंगे. कहने का मतलब ये हुआ. मतलब I don't understand this. BMC Mayor Sanjay Raut has outside chance. बोल रहे कि we are 6 short. ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, लगते हैं पूरे ऑपरेशन टाइगर will wall up the entire UBT. बड़ा बोले कि हमारा 6 शॉट है मेयर के लिए. 6 हाउ? BMC 6 बचे रहेंगे 6 बचे रहेंगे 10 दिन में. अरे सर वो कौन सी गिनती कर रहे हैं मुझे अभी तक मालूम नहीं है. Can we go across to our guests? I think we've got a wonderful panel of guests today. जबरदस्त गेस्ट हैं आज तो सर. सुशील व्यास जी नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हाउ आर यू सर? बस फाइन. संजय द्विवेदी जी. जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. समीर भागरे साहब. जय सियाराम. जय सियाराम. हर हर महादेव. वंदे मातरम. जय हिंद. जय हिंद, जय हिंद. समीर भागरे साहब स्वागत है आपका. हाउ आर यू सर? ग्रेट प्लेजर सीइंग यू. नमस्कार सर. जय हिंद. और मुकेश गांधी साहब. जय हिंद सर. जय हिंद. भारत माता की जय. हाउ आर यू सर? यू आर ऑलराइट आई होप.
आई स्टार्ट द सुशील व्यास जी टुडे, क्योंकि सुशील व्यास जी हमेशा ये बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आधे घंटे तक मैं प्रत्याशी बैठा हूँ यहाँ पे, मैं आई स्टार्ट द सुशील व्यास जी। मैंने शिकायत कभी नहीं की। सुशील व्यास जी नमस्कार। सुशील व्यास जी, अब आप ये बता दें कि आज की तारीख में एमएनएस जो है वो भी सपोर्ट कर रही है एकनाथ शिंदे साहब को केडीएमसी में, उसके अलावा ठाणे में तो आपकी मेजोरिटी है ही, और अभी कुछ खींचतान चल रही है, ऐसी स्पेक्यूलेशन है बीजेपी और एकनाथ शिंदे साहब की सेना के बीच में, ऐसा कुछ है क्या सर? व्यास साहब बोलिए प्लीज। देखिए, जहां तक मुंबई का सवाल है, मैं 16 तारीख जब गिनती हुई उस दिन के सुबह से लेकर आज तक एक ही चीज कह रहा हूं, मैं ही नहीं, मेरे तमाम नेता जो भी कहीं भी किसी चैनल पे गए कि महायुति का मेयर होगा, मराठी मेयर होगा, इससे ज्यादा आप हमसे क्या बुलवाना चाहते हैं? और रही बात कल्याण डोंबिवली की और थाना की, आपने कह ही दिया कि वहाँ मेयर किसका बनने जा रहा है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, वहां की जनता ने डिसाइड कर दिया। और अब आज जिनका नाम आपने लिया, कुछ लोगों को लगा कि हमको वहां के विकास कार्यों में अपना हाथ बढ़ाने के लिए, वहां पे सहयोगी बनने के लिए हमें श्रीकांत शिंदे जो हमारा एक नौजवान वहां का सांसद है, उसके नेतृत्व में अगर कोई विकास के कार्य वहां पे हो सकते हैं तो उन लोगों ने तय किया कि हम शिंदे सेना को मदद सहयोग करेंगे, और उन्होंने जाकर के वहां पे उनके 5 जो नगर सेवक है उन्होंने सहयोग करने की घोषणा की है। तो सुशील व्यास जी, आपका ऑपरेशन टाइगर चालू है, आपको सब जगह अपना मेयर यानी महायुति का मेयर प्लेस करना है, ऑपरेशन टाइगर चालू है। कुछ लोग चल के अपने आप आ रहे हैं, जैसे आपने कहा केडीएमसी में मन से खुद चल के आए, लोकल स्तर पर लोग डिसीजन ले लिया कि हम सपोर्ट करेंगे। अलग अलग जब बीएमसी में भी ऑपरेशन टाइगर चालू है, मगर संजय राउत को फुल होप है, बोले हम 6 शॉट है मेयर के लिए। ये कैसा हिसाब है सर? ये 6 बचेगा या 6 शॉट है? ये जरा आप सिर्फ 6 छोड़ने वाले हो, बाकी सब आपके साथ रहेंगे। संजय राउत जी के बयान पे मैं बयान आज तक दिया नहीं, आप जानते हैं। ठीक है, कोई अगर सपने में जी रहा है तो जीने दीजिए। मुंबई की 1 करोड़ 4 लाख जनता मतदाताओं ने फैसला कर दिया, 16 तारीख को गिनती हो गई। अब कौन से गणित से वो मेयर बनाने जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक है, जब तक मेयर का फैसला नहीं होता उनको इसी आशा पे जिंदा रहने दीजिए। लेकिन सवाल ऑपरेशन टाइगर वगैरह इस तरह से कुछ नहीं है। जिस भी निर्वाचित नगर सेवक को ये लग रहा है कि मुझे मेरी जनता ने, जिसने मुझे चुन के भेजा है, मुझे विकास की गंगा में अपना सहयोगी बनना है और मेरे क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाना है, तो वो निश्चित रूप से वो एक ऐसा धरातल ढूंढता है जहां पर वो अपने जनता की सेवा जो है एक इफेक्टिव तरीके से कर सके, निश्चित रूप से। और इसीलिए हो सकता है वो महायुति की तरफ नजर गड़ा के बैठा हो। लेकिन राज साहब ने जो किया है विच इज फैंटास्टिक। मैंने अब ये भी सुना है कि राज ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी की बातचीत हुई है विद रिगार्ड टू मुंबई ऑल्सो। हो सकता है कि जो 6 एमएनएस के लोग हैं शायद इस तरफ आ जाएं, ये भी कहा जा रहा है। मतलब आएंगे या नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट आएंगे तो अच्छा ही है। आएंगे तो अच्छा ही है। कुछ चीजों को पर्दे में ही रहने देना अच्छा है। सर मेरा काम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है सर, अगर देश की, जिसमें देश की सुरक्षा जहां पर इन्वॉल्व नहीं है, फिर तो बेपर्दा करना ठीक है सर, फिर नहीं, और समय बेनकाब करना ठीक है, उसकी कोई बात नहीं। समय आने पे सारी चीजें खुल जाएगी। नहीं, खुल जाएगी। भाई, और जिस दिन हमारे तमाम चुनावे नगर सेवक अपना महापौर चुनने के लिए अपने अपने नगर पालिकाओं की बैठक में जाएंगे और अपना हाथ ऊपर करके मतदान करेंगे, सामने आ जाएगा कौन किसके साथ है। Absolutely wonderful, sir. And I hope, I really and truly hope all of them actually work for people. They actually work for the purpose for which they have been elected. मैं उम्मीद यही करता हूँ। जैसे मुंबई है फॉर एग्जाम्पल, और बाकी जगह भी है। आज फॉर एग्जाम्पल देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ परफेक्ट हाईवेज, जो मेरा रूट है हर रोज का, आज भी, अब तो अभी हाईवे रिपेयर हुई है। हाईवे, आई एम टॉकिंग अबाउट हाईवे, उसको दोबारा खोद दिया गया है। अब मेरी समझ के बाहर है क्या हो रहा है। एनीवे, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर आफ्टर आई हैव डन अ फुल राउंड ऑफ एवरीबॉडी। इन द मीन टाइम, समीर बागरे साहब, कांग्रेचुलेशंस टू यू, व्हाट अ वंडरफुल जॉब यू डिड। आपने जबरदस्त काम किया सर। बीएमसी के इलेक्शन में आपको एक मतलब वार्ड का इंचार्ज बनाया गया, बाकी सब लोगों को डायरेक्शन देने के लिए भी कहा गया। यू डन अ वंडरफुल जॉब, कांग्रेचुलेशंस। बट बिफोर वी गो ऑन टू ऑल दैट, because I know that as far as you are concerned, your interest is also in economics and finance and trade. So the European Union has announced that they're going to sign the mother of all deals with India within 2 days. 2 दिन के अंदर mother of all deals with India. The CEO of the European Union is coming over here to India to sign the biggest deal ever. और उन्होंने ये भी कहा है
कि इस डील साइनिंग के बाद वी विल क्रिएट अ मार्केट ऑफ मोर देन 2 बिलियन पीपल, नॉट $2 बिलियन, 2 बिलियन पीपल। समीर भाग्य साहब कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में प्लीज? देखिए राजीव जी, पहले तो धन्यवाद, आपने जो बीएमसी चुनाव में हम हमारे को प्रचंड जीत मिली उसके लिए आपने जो कांग्रेचुलेट किया उसके लिए धन्यवाद। देखिए, भारत की जो इकोनॉमी है और भारत का जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो आज पूरी दुनिया की नज़र भारत पे है। यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और वहाँ उनके साथ हमारी जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स होने वाली है, उसके कारण जो भारतीय एक्सपोर्ट होगा उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। भारत में जो टेक्नोलॉजी जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ पर हम टेक्नोलॉजी लाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ट्रेड डील के थ्रू भारत ने अभी तक जो भी ट्रेड डील साइन किया उसमें दो चीजें आप समझ लीजिए कि एकदम क्लियर है। एक तो ऐसी बात है कि जहां जहां हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत है और जहां जहां एफडीआई है उन क्षेत्रों में हमने करार किए हैं। दूसरी बात ऐसी है, हमारा जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां हमारे छोटे उद्योग है, जहां प्रोटेक्शन की जरूरत है, वहां हमने उनको कॉम्प्रोमाइज या एंट्री नहीं दी है। इसके साथ ही हमने भारत के जो उद्योग है जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो दुनिया भर में अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए हमने वहां से कंसेशनल टैरिफ्स लाए। अभी आप देखिए कि जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है दुनिया भर में, जहां पर वॉर्स का भी एक सिनारियो है, जहां पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात है, उसमें भारत एक सुनहरा बिंदु है। आई कैन से इट्स अ वेरी स्वीट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और आज देखिए, भारत के तरफ जो आकर्षण है वो सिर्फ भारत की पॉपुलेशन या मार्केट करके नहीं है, क्योंकि भारत में एक स्थायी सरकार है, एक स्ट्रांग नेतृत्व है। आप देखिए, हमारे देवेंद्र जी भी डावोस में गए हैं और कितने बड़े बड़े उन्होंने करार किए, और उनकी आप एक रोज एक बाइट सुन लीजिए तो आज वो मेडटेक की बात कर रहे हैं। एक नया मुंबई जहां पर पूरा क्लस्टर डेवलपमेंट होगा उसकी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी रोज नया नया कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसके कारण दुनिया की पूरे जो ताकतवर देश है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि विकसित भारत के तरफ ये भारत का बहुत बड़ा कदम है। और जो ट्रेड डील्स होने वाली है, दीज आर फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत सालों से ट्रेड डील्स का डिस्कशंस होता है, बाकी चीजें होती है, लेकिन द वे मिस्टर मोदी हैज स्ट्रक्चर्ड दिस एंटायर थिंग, इंक्लूडिंग द कॉमर्स मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल जी जो है, उन्होंने भी जो जिस तरीके से चीज हैंडल की है, इट्स वेरी क्रेडिटेबल। हमने कितना भी प्रेशर आने के बाद भी हमने यूएस के दबाव में न आते हुए ट्रेड डील साइन नहीं की, चाहे वो हमको रोज धमका रहे कि हम टैरिफ लगा देंगे। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में आपको अपना देश का पक्ष रखना बहुत जरूरी है, और देश का पक्ष रखने में मोदी जी जैसे जो स्ट्रांग लीडर है, इट इज हेल्पिंग अ लॉट। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग जो $5 ट्रिलियन का जो आज इकोनॉमिक टारगेट लेके चल रहे हैं, महाराष्ट्र में 1 ट्रिलियन का लेके चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लेके चल रहे हैं, सो हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं और वो हम अचीव करके भाकरे साहब, फडणवीस साहब का आलोचना चालू हो गए, सबकाल जी, हर्षवर्धन सबकाल जी, डावोस ट्रिप का क्रिटिसिज्म, you got Shivsena, Sanjay Raut criticizing just Prakash Dev, but it is an absolute laudatory 15 lakh crore का deal, 15 lakh employment that is going to be generated, and more to come in the coming years. But why is this criticism? He is getting business. आपके लिए महाराष्ट्र में business लेके आ रहा है. Maharashtra is competing as number one. Why do you see the criticism for the Davos trip of Devendra Fadnavis ji? देखिए, संजय राउत जी के बारे में मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 15 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दी होगी, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं लिया होगा। और तो उनको 15 लाख जब देवेंद्र जी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात करते हैं तो जरूर उनको तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि आज देखिए, मुंबई की जनता ने इनको विकास के एजेंडे में देवेंद्र जी ने पूरी ये चुनाव को अप्रोच किया था, और मुंबईकर ने देवेंद्र जी और महायुति और शिंदे साहब का साथ दिया। तो जब संजय राउत को पता चल रहा है कि भाई अभी हम कुछ हमारे पास बोलने के लिए क्या है, तो ऐसी जो अनाप शनाप बातें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, अगर कोई स्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट्स आ रही है तो इसके बारे में क्रिटिसाइज करने की बात कहाँ से आती है। मुझे तो ये नहीं समझ रहा कि संजय राउत क्रिटिसाइज क्या करना चाह रहे हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना हो? क्या वो चाहते हैं महाराष्ट्र के युवकों को रोजगार ना मिले? क्या वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र का विकास तेजी से ना हो? तो देखिए, ये लोग जो है सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलने की इनको आदत है, और जनता के सामने पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। तो संजय राउत जी का क्रिटिसिज्म जो है, मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहिए, उनके सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। रोज अपना 9 बजे आके कुछ भी बोलना, और उनके पास अभी देखिए राजू जी, प्रदीप जी, बोलने के लिए फ्रैंकली कुछ बचा नहीं है।
तो जब आपके पास बोलने के लिए कुछ भी बचा नहीं है तो आप ऐसे चीजों पे जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। अगर फडणवीस जी जाके डाइवोर्स में जाके इन्वेस्टमेंट्स ला रहे, एम्प्लॉयमेंट ला रहे, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने लास्ट ईयर के जो एमओयूज है उसमें से ऑलमोस्ट 85% कार्यान्वित हुए। महाराष्ट्र इज वे अहेड ऑफ एनी अदर स्टेट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली गेटिंग द एमओयूज ऑन ग्राउंड। Yes. तो फडणवीस साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, फडणवीस साहब के भाषण है, और आप उद्धव जी के या संजय राउत के भाषण देखिए, उन्होंने आज तक कोई विकास की बात नहीं की। उन्होंने क्या 3 चीजें उन्होंने की। एक तो मैं मुंबई 10 मिनट में बंद कर दूंगा। आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र जी की मिमिक्री की। राज ठाकरे ने अन्नामलाई को कुछ अपशब्द कहे और गाली दी। तो जब आपके पास कोई चीज दिखाने के लिए नहीं रहती तो आप इस तरह से बर्ताव करते। और संजय राउत का ये जो क्रिटिसिज्म है, आई थिंक वी आर गिविंग हिम इम्पोर्टेंस व्हिच ही डजंट डिजर्व एट दिस स्टेज। संजय राउत, Right, so let me go to Sanjay Dwivedi sir, but before I go, some very good news indeed, which I think will gladden the hearts of everybody. वो एक तो मैंने बात करी थी उसके बारे में, EU के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है वो तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और उसके अलावा विदाउट टेलिंग एनीबडी, बिना शोशे के, बिना अनाउंसमेंट के, द्विवेदी साहब सुनने वाली बात है, मुकेश गांधी साहब सुनने वाली बात है, और खैर समीर बागे साहब को तो मालूम ही होगा, एंड सुशील व्यास जी वुड ऑल्सो नो। इंडिया ने बड़े प्यार से पिछले 30 अक्टूबर को 2025 में 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिकन येलो पीस पर, यानी अमेरिकन येलो दाल पर, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं 30%। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अब जब वो हार्वेस्ट हुआ है, अब मालूम पड़ा कि यार हिंदुस्तान में कोई इंपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है। वी हैव ऑलरेडी प्लेस्ड ऑर्डर्स विद साउथ अमेरिका, with Africa, with South Africa, with Rwanda, with Uganda and Australia, वहां से हम लोग दाल खरीद रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अब क्या है कि वहां के जो यूएस कांग्रेसमैन और सेनेटर्स हैं, उन्होंने अमेरिका को लिखा है कि भैया मोदी जी आपके मित्र हैं, प्लीज उनसे जरा बात कीजिए, हमारे जो किसान हैं वो भूखे मर जाएंगे नहीं तो। दिस इज व्हाट इज हैपेंड। और उसके अलावा खबर ये भी है बागरे साहब और सुशील व्यास जी, मुकेश गांधी साहब, संजय द्विवेदी जी, कि कई और ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर इंडिया ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे ना बड़े प्यार से, वी हैव नॉट सिंगल्ड आउट अमेरिका बाय द वे, वी हैव सेड दिस इज फॉर द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए ऐसा करके बोल दिया, एक्सेप्ट दोज नेशंस विद whom we have a free trade agreement. Now that is going to have a major effect. Number 2, एक बहुत बढ़िया खबर है सर, केरल से आई है, प्रदीप जी शायद उसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे। महामाघ महोत्सवम जो है, महामाघ महोत्सवम जो केरल का कुंभ हुआ करता था, महाकुंभ, 270 साल पहले उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि हैदर अली साहब और टीपू सुल्तान साहब, इन लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेजन किए। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया। सर, आफ्टर 270 years this festival has been revived. From January 16th it has already started. It is the Mahakumbh of the South. For the first time in 270 years it's happening, which is absolutely fantastic. Right, so let's go to Sanjay Dwivedi साहब। संजय द्विवेदी साहब, ये आदरणीय सम्मानीय बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे संजय राउत साहब। वो बोलते हैं कि बीएमसी चुनाव में हमारे पास सिर्फ 6 कम हैं, 6 कॉर्पोरेटर कम है बस मेयर बनाने के लिए। वो 6 आ गए तो उद्धव ठाकरे जी का मेयर बन जाएगा। द्विवेदी जी जरा बताएं सर, ये मतलब कैसे हिसाब हुआ, मेरी समझ के बाहर है सर, बताएंगे जरा प्लीज। देखिए, एक सबसे बड़ी जो जीत हुई है माननीय उद्धव ठाकरे की हुई है बीएमसी में। 2017 में हमारे 84 पार्षद थे जी, 82 पार्षद हमारे थे बीजेपी के। मेयर बीजेपी के समर्थन से हमारा मेयर बना था। आज जो तमाम चीजें कही जा रही हैं कि साहब नहीं, शिवसेना को हटा दिया गया, उद्धव ठाकरे को हटा दिया गया, बीएमसी से हटा दिया गया, तो भाई बीएमसी से हटा क्या दिया गया? हम तो गठबंधन से बने थे ना, हमारे को 130-140 पार्षद तो थे नहीं। आपने गठबंधन किया, हम बने, लेकिन आपको चूंकि लालच लग गया कि नहीं, अब उद्धव ठाकरे जी को, माननीय बाला साहब ठाकरे के जो हमें आशीर्वाद था, बाला साहब ठाकरे ने जो हमारे पर उपकार किए थे, उसका बदला हम उद्धव ठाकरे से चुका लें। तो आपने पार्टी तोड़ दी। पार्टी तोड़ने में बता दिया था। 2014 में हम चुनाव अलग लड़े थे। 2014 में विधानसभा जो चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, वो बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग लड़ा था, लेकिन एकनाथ शिंदे तब अलग नहीं हुए। 2019 में भी अजीत दादा पवार साथ सरकार बना ली। इसके बाद हमारी बैठक हुई, उसमें साहब कहा कि नहीं,
अब हम महाविकास अघाड़ी बनाएंगे, हम कांग्रेस एनसीपी समर्थन लेंगे, तब भी मानिए एक नाथ शिंदे थे, खैर उन्होंने तब भी नहीं लिया। हाँ, जब 2.5 साल बाद जो है, जब मामला सेट हो गया कि मुख्यमंत्री पद लेंगे हम, 50 होके लेंगे, सीबीआई ईडी का डर दिखाया गया, इसके बाद उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन दुर्भाग्य ये सबसे बड़ा आज की डेट में है कि जो मुख्यमंत्री बना उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया, वो जो मुख्यमंत्री बन गए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है, जो हमें लग रहा है कि कितना बड़ा वो है कि उन्होंने जो कहते हैं ना, बाला साहब ठाकरे की हम नीतियों को लेकर चल रहे हैं, आदर्शों को लेकर चल रहे हैं, सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। तो बाला साहब के ठाकरे सिद्धांतों में तो नहीं था कि आज सम्मान बेच दें हम, हमें मुख्यमंत्री का ऑफर दी जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, या हमें या हमारे जो हमारी बात तक न मानी जाए। 2014 में इसीलिए गठबंधन टूटा था कि मानी हमारी जो शिवसेना की जो बातचीत थी वो मान नहीं रहे थे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। 2019 में भी यही हुआ कि उन्होंने हमारा गठबंधन इसलिए नहीं किया कि वो हमारी 2.5 साल की मांग थी, 2.5 साल की मांग थी, उसको उन्होंने मानने को तैयार नहीं हुआ। जबकि ईश्वर ने 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहा, फिर एक मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे बन गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ पाया मुख्यमंत्री द्विवेदी जी, मगर एकनाथ शिंदे जी फूट कर पूरे महाराष्ट्र में सिविक पोल्स में सब जगह हासिल किए, आपने झंडा फहरा दिया वहां पर और कहा कि ये बाला साहब ठाकरे के विश्व जो हमने लेके आइडियोलॉजी चले हैं और लोग हमको एक्सेप्ट करने लगे। आप देखो, ठाणे पूछो, केडीएमसी पूछो, जितने भी उल्लासनगर पूछो, सब जगह परफॉर्मेंस एकनाथ शिंदे जी का जबरदस्त रहा। तो क्या ये सिर्फ अभी ऑपरेशन टाइगर भी नहीं, अभी व्यास जी बोलेंगे ऑपरेशन टाइगर नहीं चालू है, मगर लोग जुड़ रहे हैं लोकल लेवल पर, आपको आपके लोग फूट रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं एकनाथ शिंदे जी को, और आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ धमकी दे रहे हैं कि इनको निकाल देंगे, उधर निकलने को तैयार है। तो क्या आइडियोलॉजी शिफ्ट वो एकदम सिद्ध हो गया कि लोग बिलीव करने लगे कि बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी एकनाथ शिंदे जी लेके चल रहा है? मैं कारण बता दूंगा आपको, मैं कारण बता दूं। हाँ। जी मुझे स्पष्ट कारण दे दिया है। जैसे उद्धव ठाकरे को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे मिली, मसाल चुनाव चिन्ह मिल गया, ऐसे ही एक नाथ शिंदे को जो इनका जो था पहले चुनाव चिन्ह था और जो पार्टी का नाम था वो रखना चाहिए था। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर हम ऐसा काम नहीं करें, चुनाव से मिलकर जो उन्होंने गठबंधन, जो इन्होंने विधायकों के बल पे जो उन्होंने पार्टी तोड़वा दी, जो 75 साल का इतिहास है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और तो पार्टी तोड़वा दी, अनुमान दे दिया और शिवसेना नाम दे दिया, तो कुछ परसेंटेज इसका फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कुछ लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, मैं महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से बधाई देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इन सब चीजों के बाद भी शिंदे के 29 जीते, हमारे 65 जीते, 15% वोट हमको मिला, 4-4.5% वोट इनको मिला। बीएमसी में बात कर रहा हूँ, जो हमारा पूरे महाराष्ट्र का की जान है, महाराष्ट्र की हृदय है, वहां भी उन्होंने दिखा दिया। जिस तरह उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखाया, आज उन्होंने बीएमसी में दिखा दिया कि नहीं, उद्धव ठाकरे की जो चीज है, उद्धव ठाकरे की जो गारंटी जो है, हमारे जो अपनत्व है, जो प्यार है, जो उनके कार्य है, भाई भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में लगाते रहे कि साहब भ्रष्टाचार किया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जबकि खुद बीएमसी में इनका गठबंधन था। अगर हम भ्रष्टाचार कर रहे थे तो बीजेपी वाले के हाथ जोड़े बैठे हुए थे, बीजेपी वाले क्या कर रहे थे? क्यों नहीं 2019 में 2017 हमको गठबंधन दिया? तो ये चीजें देखिए बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, ये चीजें जो ऐसी हैं, सर ये 6 का जो हिसाब से बता दो सर, ये तो ठीक है, ये तो आप बोल चुके हैं सर, ये तो आप तीसरी बार बोल रहे हैं कि आखिरकार बीएमसी में अगर हमें भ्रष्टाचारी आप कह रहे थे तो उद्धव ठाकरे पे भ्रष्टाचार दुरुस्त बात है। ये आर्गुमेंट, अरे संजय द्विवेदी जी, ये आर्गुमेंट पहले हो चुकी है ना, ये आप बात सर आप अकेले नहीं बोल रहे, सब बोल रहे हैं, अकेले नहीं बोल रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना पलड़ा झाड़ नहीं सकती, कि 25 साल से अगर शिवसेना थी तो बीजेपी भी साथ में ही थी, ऐसा नहीं बोल सकते सर। वो आप बोलेंगे, कोई बात नहीं, बोलते रहो, जैसे समीर बागरे साहब मेरे मित्र हैं, बोलेंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बट द फैक्ट इज वी वर टुगेदर। हाउएवर ये 6 का हिसाब क्या है ये तो बता दो, क्योंकि मैं तो कैलकुलेट कर करके थक गया। ये 6 बस 6 कहता सिर्फ हमें 6 चाहिए। अरे क्यों भाई 6? मतलब आप बताइए ना सर, ये 6 का हिसाब क्या है? द्विवेदी जी प्लीज। बीएमसी के 29 पार्षद होटल में टिके हैं, जैसे 2.5 साल आज छोड़, आज मुक्ति हो गई उनकी, रिहाई सर, रिहाई हो गई, आज चले गए सब। नहीं आज हो गई, लेकिन टिके तो रहे ना,
अब टिके रहे इनके। तो जैसे पहले गोवा भाग गए थे, गुजरात भागे थे, अब यहाँ भागे, उनसे सब कागज पत्र सर मुझे लगता है उल्टा होने वाला है। इनको डर किससे लग रहा है मानने वाले? इनको डर प्रदीप जी बजाज जी डर लग रहा है बीजेपी से। ये अपने महायुति से ही घबरा रहे, बीजेपी से घबरा रहे हैं। ऐसा ना हो हमारे पार्षद तोड़ लिए जाए, और किसी से ना घबराहट नहीं है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इनको डर यही लग रहा है So let me go to मुकेश गांधी साहब। वो ना मिले हमारे पार्षद तोड़ दें। जी मुकेश गांधी साहब 30 मिनट से कुछ नहीं बोले। डर है, अभी भी डर बरकरार है जी। तो मुकेश गांधी साहब, राइट, द्विवेदी जी, I'll come back to you and you can intervene anytime you want। अरे द्विवेदी जी, जानते एकनाथ शिंदे ने किया। द्विवेदी जी, आपकी बात आ गई। मैं मुकेश गांधी साहब के पास जाता हूं और मुझे आपके पास वापस आने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको जब बोलना बोलिए, बीच में कोई टेंशन नहीं है, बोलिए। आज फ्री फॉर ऑल है, जिसको जो बोलना बोलो। मुकेश गांधी साहब, आप कृपा करके ये बताइए, ये 6 का हिसाब शायद आपको मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम यार। आई डोंट अंडरस्टैंड सर। 65 + 6 is 71, that's it। You need at least 115 in the BMC। तो ये बाकी कहां से, मतलब आप बताइए ना सर प्लीज। आई एम कंफ्यूज्ड। ये संजय राउत जी को सिर्फ 6 कहां से दिख रहे हैं, आप बताओ ना सर। मुकेश गांधी जी प्लीज। ये राउत ये दोनों ने मिलके, उद्धव जी ने ये गूगली बॉल डाली है कि हम बीएमसी के ऊपर कब्जा लेंगे, पर ये गूगली बॉल से विकेट नहीं पड़ने वाली है, वो 9 बॉल में जाने वाली है। इतना लिख के रखना। कोई 6 का ये नहीं है, ये मुहावरा है, और ये मुहावरा करने की आदत संजय राउत की बहुत पुरानी है। बहुत बड़े खिलाड़ी है, मांझे हुए खिलाड़ी है, और वो कुछ बात डाल के लोगों में इशारा डालते हैं कि अगर शिवसेना शिंदे में से या कहीं से भी उनको थोड़े लोग मिल जावे तो उनकी गाड़ी चल जावे। पर अभी जब होटल से सारे शिंदे के शिव सैनिक निकल गए हैं, अपने अपने घर पे जा रहे हैं, और 30 जनवरी को मेयरशिप का जो इलेक्शन डिक्लेयर होगा, उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी का मेयर ही बनेगा। नहीं, वो तो बनेगा ही सर, लेकिन और बाकी जगह पे भी डील वगैरह हो गई है। और दूसरी बात यह है इसके बारे में, इसके पहले के प्रदीप जी आपसे सवाल पूछे, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि माननीय राज ठाकरे साहब ने ये बोला है कि मेरे जितने लोकल यूनिट है उनके पास पूरी आजादी है, जिसके साथ जाना चाहे। अब केडीएमसी में उनके जो 6 थे ना सर, 5 वो चले गए एकनाथ शिंदे जी के पास। अब ये भी हो सकता है कि जो 6 मुंबई के हैं वो भी चले जाएं शायद, मतलब बात तो हो रही है। बल्कि सुशील व्यास जी ने ये कहा है कोई बातें ऐसी जो पर्दे में रहने दो। तो मुझे तो ये सुना है कि राज ठाकरे साहब के जो 6 हैं वो भी शायद सपोर्ट करेंगे एकनाथ शिंदे जी को। सर आप बताएं प्लीज। सर इसमें पर्दे में रखने की कोई बात नहीं है। राज ठाकरे जी के करीब के लोगों का ही मेरे साथ बात हुई है जी। दे आर एक्चुअली बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे ने उनका यूज किया पर उनको जिताने में मदद नहीं किए। वो बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन मनसे में है, और उसके कारण उसको सबक सिखाने के लिए हो सकता है कि मनसे के लोग धीरे धीरे करके भी अपने साथ में प्रैक्टिकल जूथ बना करके शिंदे जी के साथ चले जाएं। जाने की भी जरूरत नहीं है, बाहर से सपोर्ट कर देंगे सर, जाने की भी जरूरत नहीं है। और वो लोकल लेवल पे नहीं बोलेंगे, अपने आप फूट जाएंगे, उसको भूलने वाला नहीं है किसी। वही सपोर्ट ही बोलता हूँ, वो साथ में जाएंगे। और साथ में क्या है कि राज ठाकरे को आज नहीं तो कल आप 2 महीने में लिख के रखना कि मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम अप टू जून 3-4 महीने में राज ठाकरे अगेन विल डाइवर्ट हिमसेल्फ विद द बीजेपी टोटली, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी का पर्दाफाश उनके साथ में हो गया है, और अभी ठाकरे ब्रांड सिर्फ उद्धव ठाकरे जी चलाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मुकेश गांधी साहब, आप सबसे पहले आप भी कहने वाला था कि शरद पवार जी ढलता सूरज है, और ढलता सूरज के साथ अजित पवार गया और खुद भी ढल गया। अजित पवार भी गया, शरद पवार भी गया। जो आपके मेन होप्स थे पिंपरी चिंचवड पुणे, वहां आपको धराशायी यानी बीजेपी ने टोटल क्लीन बोल्ड कर दिया, और जो एक्सपेक्टेशंस थे परफॉर्मेंस का टोटली। तो अब जिला परिषद पंचायती में आप पूरे ध्यान लगा रहे हो दोनों, शरद पवार जी और अजित पवार जी। तो आगे व्हाट इज द फ्यूचर, आप क्या देख रहे हो? आपने करीब से देखा है दोनों को, अब क्या होगा? बचेंगे वापस बचेंगे कि नहीं? जिला परिषद में इतनी फास्ट 5 फरवरी की डेट अनाउंस हो गई है
कि सिर्फ सभी पार्टियां, नॉट एनसीपी, और सभी पार्टियां इतनी ग्रिप में आ गई है कि इसमें बीजेपी का जितना मशीनरी है और उनकी जो वर्किंग है, उनके सिवाय सब की मशीनरी बहुत वीक है। और मुझे नहीं लगता है कि हमारी एनसीपी, दोनों एनसीपी मिलके भी कोई बड़ा रिजल्ट इसमें दिखाएगी, मुझे नहीं लगता है। मगर मुकेश गांधी क्योंकि साहब, वहां भी अभी मैंने रायगढ़ से, पूना से, इधर से आजू बाजू के हमारे कार्यकर्ताओं के टेलीफोन आया है, उनका यही फ्रस्ट्रेशन है कि हमारे एनसीपी के नेता हमको कॉन्फिडेंस में लिए बिना सारे डिसीजन ले रहे हैं और पूरा कार्य कर रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन अनटू द लास्ट नीचे लेवल पे भी जाएगा तो तकलीफ होगी। और मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि अजित पवार जी को सक्सेस मिले, जिससे उनका रुतबा बना रहे। नाना पाटोले जी ने बोला कि 8 दिन में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। एक तो सुशील व्यास जी के पार्टी एकनाथ शिंदे जी को तकलीफ होने वाला है, जो नाना पाटोले जी। दूसरा बोला अजित पवार जी का कुछ तकलीफ होने वाला है। क्या होने वाला है? आप तो बहुत करीब से देख रहे हो, क्या कुछ चल रहा है? चल रहा है कि नहीं, सर ये क्या है? ये सब लोग, वो नाना पटोले भी दूसरा संजय राउत का भाई है, उसको भी सिर्फ गूगली बॉल डालने में इंटरेस्ट है और उसके हर गूगली बॉल आज तक 9 बॉल में ही गए हैं। इतना आप समझ के चलिए सर, राइट। ये बात में कोई दम नहीं है। सो लेट्स गो टू सुशील व्यास जी। सुशील व्यास जी, ये जो अभी प्रदीप जी ने बोला कि तकलीफ होने वाली है या जो भी होने वाला है, I would like your comment on this, sir. And please don't say that you would not like to comment. I would like you to comment, sir. The comment, no. Sir, please hear the question. Sir, सवाल सुन ले। सर सवाल सुन ले। पृथ्वीराज चौहान साहब ने ये कहा था, वैसे बड़े मेच्योर लीडर हैं, बड़े सीरियस, आई यूज्ड टू थिंक ऑफ हिम एज अ वेरी सीरियस लीडर। वो कहते थे कि दिसंबर 19 के बाद नरेंद्र मोदी विल नॉट रिमेन प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बोला था। और अब ये शख्स बोल रहे हैं कि पता नहीं किस किस को तकलीफ होने वाली है। नाना पटोले साहब को पता ये हो क्या गया इनको सर? आप ये बताएं ना सर। सर आई थिंक दे नीड सम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट समवेयर, आई थिंक। आप बोलिए ना सर सुशील व्यास जी, प्लीज। मैं आपके इस प्रश्न के जवाब दूं उसके पहले आपको शायद संतुष्टिपूर्ण जवाब 106 वाले आंकड़े का नहीं मिला, ए वाले आंकड़े का नहीं मिला है जी। वो मैं गिना दूं जो हाइपोथेटिकल किस तरह से था। What they are counting is 65 plus 7, 71 plus 24 of Congress, 95 plus 8 of MIM, plus 2 of SP, समाजवादी पार्टी, 1 of Sharad Pawar. That becomes 108, 6 बाकी रहता है 114 में। ये उनका सपना है। अब लेकिन ये क्लियर करना चाहिए संजय राउत जी को, अगर MIM समर्थन देती है तो क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे का मेयर MIM के 8 वोटों के समर्थन से मेयर बनकर बाला साहब की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए अपना हकदार कहला सकता है क्या? ये पहले उसको जवाब मुंबई की जनता को उनको दे देना चाहिए। अगर गणित 6 का है तो यही है, इसके अलावा कोई गणित नहीं हो सकता। वेरी गुड। क्योंकि 29 प्लस 89 तो यहाँ स्पष्ट रूप से है, इसमें कोई शक है नहीं। और आज की जो घटना, लेटेस्ट घटना, एक कोकण भवन में अपना ग्रुप बनाने को गए 6 बजे के करीब, उसमें 64 लोग ही पहुंचे। एक हमारी महिला नगर सेविका बहिना वहां नहीं पहुंची, नॉट रीचेबल है, शी इज नॉट ट्रेसेबल, नॉट रीचेबल। सो अब वो अपने आप को 65 नहीं 64 ही मान के चले। तो ये सारी घटना है जो इसीलिए मैंने कहा वी मस्ट वेट एंड वॉच जब तक मेयर का। I think as Pradeep ji said there may be only 6. He is talking about the 6. सबसे अलग चीज है। अब दूसरी बात पटोले जी और उनकी आप कर रहे थे जी, पृथ्वीराज चौहान जी। पृथ्वीराज चौहान जी को देखिए, उन्होंने वो जो ट्रम्प का जो डॉक्यूमेंट्स खुलने वाला था एप्स्टीन फाइल्स, उसमें सुप्रीम कोर्ट के वहां के आदेश के अनुसार कुछ वहां पे खुले भी, कुछ नहीं भी खुले, लेकिन उसमें भारतीय नेताओं का उसमें कहीं कुछ सामने आया नहीं। उसी आशा पे उन्होंने कहा कि उसमें शायद कोई कोरिलेशन होगा और वो इतना बड़ा बम्बार्डमेंट होगा, भारत की राजनीति में एक तूफान आ जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री भी बदल जाएंगे। और उन्होंने एक उत्साह में आकर कह दिया एक महाराष्ट्र प्रधानमंत्री होने जा रहा है। ठीक है, पृथ्वीराज जी बड़े नेता है, गंभीर विचार रखते हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर ज्यादा कोई हल्के रूप से नहीं कहना चाहता, लेकिन उनको इतने सीनियर और पढ़े लिखे नेता, अनुभवी नेता को इस तरह से हल्का बयान नहीं देना चाहिए। व्यास जी आगे जाके नाना पाटोले जी ने कहा बैलेट पेपर पे इलेक्शन करो और फिर देखो कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या होता है।
सेम थिंग राहुल गांधी जी ने क्रिटिसाइज किया महाराष्ट्र सिविक पोल्स का, प्रियंका गांधी जी ने क्रिटिसाइज किया महाराष्ट्र पोल्स का, सिविक पोल्स का। क्या बैलेट पेपर एक ऑप्शन है जो बार बार कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं बैलेट पेपर पे लो, बैलेट पेपर पे लो? नाम्बियार जी, मैं जानना चाहता हूं, थोड़ा इतिहास के पन्नों को भी हम पलट लें। ये ईवीएम नाम की मशीन का इंट्रोडक्शन किसने किया चुनाव? कांग्रेस ने सबसे पहले राजीव गांधी का टाइम हो। जी हाँ। नहीं तो हमने किया क्या? नहीं, सबसे पहले राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, केरल में किसने इस्तेमाल किया हुआ हम था। जानना चाहते हैं। इतिहास के Correct. पन्नों को हमको पलट के देखना चाहिए, करेक्ट है ना? तुम किसको ब्लेम कर रहे हैं? और फिर रही बात महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के चुनाव में, आप कह रहे हो राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने कुछ बयान दिए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं में, 432 नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों द्वारा कितने जगहों पर शिकायत अधिकृत रूप से दर्ज हुई है इस तरह के मतदान के दौरान कुछ भी इलीगलिटी या अनियमितताओं के लिए? हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम तो रोज समाचार पत्र माध्यमों को ही देखते हैं, उसके माध्यम से तो मुझे कोई चीज, ठोस चीज समझ में आई नहीं कि उन्होंने कोई गंभीर रूप से या वैधानिक रूप से कोई शिकायत दर्ज कहीं करवाई हो। और अभी तो सुशील व्यास जी एटलीस्ट 4 जगह पे तो उनको मेजॉरिटी आई है। ये भी तो आप देखिए ना कांग्रेस को, वो भी तो ईवीएम के ऊपर ही हुआ है। जैसे चंद्रपुर हो गया अपना, कपल ऑफ अदर प्लेसेस राइट ओवर देयर in that area in which they say that they're going to be forming a mayor. बजाज साहब जी, चंद्रपुर तो आप कह रहे हैं जी, आप कल सुबह तक देख लीजिएगा चंद्रपुर के क्या हालात हो रहे हैं। और लातूर, स्प्लिट इन कांग्रेस ग्रुप, लातूर भी बोला उसने, लातूर। बटेड़ीवार अपने ग्रुप के नगर सेवकों को लेकर कहीं अलग रखे हुए हैं। वो धानोरकर जो सांसद है वो अपने ग्रुप के नगर सेवकों को कहीं अलग रखे हुई है, और वो दोनों ही बीजेपी के संपर्क में है, ऐसा कहा जा रहा है। जी, अमरावती के तो 12 के 12 इस तरफ आ गए थे ना बीजेपी की तरफ। Actually it happened. मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का भविष्य भगवान जानता है क्या होने जा रहा है। जी, let me go to समीर बाकरे साहब। 25 का टारगेट पूरा होगा, 25 का ना टारगेट पूरा होगा। बाकरे साहब, प्रियंका गांधी जी का वही कहना है कि आप राहुल गांधी जी के अस्तित्व को मिटाना चाहते थे। बोले the BJP wanted to destroy Rahul Gandhi's image and wipe him out from politics. But look at your performance. That was what Priyanka Gandhi says. BMC में 82 थे आप 2017 में, 82 से आप 89 पहुंचे। 7 साल लगे आपको। 7 साल आप जो बड़े बड़े बातें, मीन्स एज पर प्रियंका गांधी, बड़े बड़े बयान जो कर रहे थे, अपने आप को सुधार नहीं पाए। आप राहुल जी के क्या इतिहास को मिटाओगे? दैट इज प्रियंका गांधी आस्किंग यू, बाकरे साहब। देखिए प्रदीप जी, इससे तो हास्यास्पद स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना। राहुल गांधी तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है, तो हम क्यों बीच में आए भाई? वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में, उन्होंने 95 चुनाव राहुल जी के नेतृत्व में हारे, तो ये गौरवशाली इतिहास हम क्यों मिटाना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि वो 300-400-500 इलेक्शन हारे, तो हम उनको नहीं रोक रहे, वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे। दूसरी बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में 227 सीट लड़ी थी, उसमें से 82 सीट जीती थी, और इस बार हमने 137 सीट लड़ाई है और उसमें से 89 सीट जीती है। सो कॉन्टेक्स्ट में चीजें रखना चाहिए। हमारा स्ट्राइक रेट 66% है, उस वक्त का स्ट्राइक रेट आप निकाल के देखिए, तो इट्स अ बिग विन। हमने मतलब 100 ऑलमोस्ट 90 सीटें शिंदे साहब की शिवसेना ने लड़ी है, और हमने 90 सीट में हमारा 66% स्ट्राइक रेट रहता, तो आप देखिए हमारी खुद की 150 सीट आती थी। तो ये झूठ बोलना बंद कीजिए उबाटा की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाई हमारी 82 की सिर्फ 89 हुई है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा स्ट्राइक रेट 66% है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने महाराष्ट्र में जहाँ से कांग्रेस की शुरुआत हो गई, आज बीएमसी में उनका कितना प्रतिशत वोट आया, उनके कितने कैंडिडेट जीते। और मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, संजय भाई कह रहे थे कि भाई उद्धव ठाकरे जी को बहुत बड़ी जीत दी है, तो अगर ये हार के, मतलब ये क्या खुद को ये समझ रहे क्या बाजीगर की, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं? तो मुझे ऐसा पूछना है कि ये किस जीत की बात कर रहे हैं? जिस मुंबई में आप ठाकरे ब्रांड कर रहे हैं, तो आपको फिर शिवसेना का चिन्ह क्यों चाहिए? फिर अगर ठाकरे ब्रांड इतना बड़ा था राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का, तो आप तो उनके नाम से चुन के आने चाहिए था। एक ही ब्रांड था मुंबई में, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का ब्रांड था। जब इन्होंने 2019 में हिंदुत्व छोड़ा, मराठी मानुस को छोड़ा, बीजेपी को छोड़ा, अपने आइडियोलॉजी को छोड़ा, और अभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया।
आज आप देखिए इलेक्शन होने के बाद इनका और राज ठाकरे का एक भी कॉमन स्टेटमेंट नहीं आया। इलेक्शन के पहले तो रोज एक के घर पे जाया करते थे, अभी तो कहीं नहीं दिख रहे। जी। तो आज ये मनसे को भी छोड़ने के चक्कर में, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी है, सिर्फ सत्ता से प्यार है उनको, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने हर आदमी को छोड़ा है। वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व की आइडियोलॉजी छोड़ी है। उनके ऊपर गली गली में प्रचार हो रहा था कि भाई अगर हम आपका यूबीटी को चुन के लाएंगे तो मस्जिद का जो अजान बंद हुआ है हम चालू कर देंगे। यानी वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी और उनके सुपुत्र इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर गाने बन रहे कि अल्लाह का बंदा जनाब उद्धव ठाकरे, क्या क्या नहीं बन रहा। तो मुझे ऐसा कहना है कि वेरी सॉरी टू से कि बाला साहब की जो लेगेसी है उनके सुपुत्र बिल्कुल नहीं चला पाए। सर एक और चीज, एक और छोटी आनंद सी चीज शिंदे साहब ने वो लेगेसी को आगे लेके गए। सर एक और छोटी सी चीज, क्योंकि परसेंटेज की भी बात आई थी, वोट परसेंटेज की, संजय द्विवेदी जी ने कुछ बात करी थी परसेंटेज ऑफ वोट्स की। तो बीएमसी इलेक्शन में बीजेपी के 45.22% वोट है, वोट परसेंटेज बीएमसी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बीएमसी इलेक्शन, बाकी हर जगह पे तो बहुत ज्यादा है। सिर्फ अगर मुंबई की ही बात करें तो द बीजेपी हैज पोल्ड 45.22% ऑफ द वोट। उद्धव ठाकरे जी को 27.52% मिले, 27.52%. There's a huge difference over there. So I don't even know what people are talking about. At the moment, it is absolutely true, by the way, कि we did not expect उद्धव ठाकरे to get even 65 votes. हर एक को ये लग रहा था कि उद्धव जी के 10 सीटें आ जाएंगी, 15 आ जाएंगी, 20 आ जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें, पूरे महाराष्ट्र से आज की तारीख में उद्धव ठाकरे सेना गायब है, पूरे महाराष्ट्र से। कोंकण जो सबसे, समीर बागरे जी मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप जरा अपनी टिप्पणी करें। कोंकण जो बाला साहब ठाकरे का गढ़ हुआ करता था सर, कोंकण वाज लाइक दिस फॉर बाला साहब ठाकरे। कोंकण में आज की तारीख में उद्धव ठाकरे साहब गायब हैं सर। कहां है रत्नागिरी में, कंकौली में कहां है, किस जगह पर हैं? मतलब आई वुड रियली लाइक टू नो व्हाट हैज हैपेंड। Only one seat in Thane. Thane is the first mayor of Shiv Sena. वहां पर UBT has got only one. एक सीट भी नहीं है थाने में सर। मतलब देखिए आनंद दिगे जी का शहर। हाँ बताइए सर प्लीज। देखिए राजीव जी, एक सीधा इसमें मैसेज है कि आपने अगर अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी तो आपको जनता रिजेक्ट करने वाली है। आपने सत्ता की लालच में अगर ऐसे गठबंधन किए जिसका कोई आपके आइडियोलॉजी से संबंध नहीं है, और आपने सिर्फ गठबंधन नहीं किए, उनकी आइडियोलॉजी भी अपना ली। एक होता है गठबंधन करना और एक होता है अपनी आइडियोलॉजी छोड़ना। तो इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी। तो कोंकण का जो व्यक्ति है आज, इनके पास कोंकण में कौन नेता बचे हैं? इनके पास हर प्रांत में कोई नेता नहीं बचे, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी एक मातोश्री से बाहर निकलने को तैयार नहीं। वहां से शिवसेना भवन जाएंगे, वहां से मातोश्री जाएंगे। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने वही किया था कि हम मंत्रालय भी नहीं गए। तो देखिए जनता जो है ना, जनता देखते रहती है। जनता, मैं तो इलेक्टोरेट को सलाम करता हूँ कि इतना जबरदस्त मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और महायुति को दिया है। उन्होंने देखा है देवेंद्र जी ने क्या विकास किया है मुंबई में। अगर आप एक व्यक्ति को सिर्फ 5-6 साल के इसमें उन्होंने इतना विकास करके दिखाया है, और इधर उद्धव ठाकरे जी 25 साल से बैठे हैं और इनको, मतलब मुझे तो नहीं दिखा कोई एक भाषण जिसमें इन्होंने अपना कोई विकास का काम बताया। सिर्फ इन्होंने ये कहा कि हमने ये चालू किया था, हमने ये सोचा था, हम करने वाले थे। अरे भाई, आप करने वाले थे तो आपने क्यों नहीं किया? आपने 75,000 करोड़ के जो बजट है उसमें से आप बोलते कि हमारे कुछ 40,000 करोड़ की एफडीआर है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, क्या ये बीएमसी एक बैंक है क्या कि वो जाके बैंक में पैसे जमा करके एफडी बने? अरे जनता के काम के लिए पैसा खर्चा करना है आपको। आप गड्ढा में मुंबई है, ड्रेनेज का नहीं है, कचरा है। तो मुझे तो उद्धव ठाकरे जी का ये सिर्फ बीएमसी उनका एक मतलब एक करप्शन का अड्डा बना हुआ था, उसमें उनकी पार्टी चलती थी। तो ये करप्शन का अड्डा बंद हो गया है। और आज कोंकण की जनता हो, चाहे आप देखिए ना विदर्भ में कहाँ है, मराठवाड़ा में कहाँ है, आप पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र कहाँ है अभी उभा के? क्योंकि संगठन को जो टाइम देना पड़ता है, जो संगठन में लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ता है, उद्धव ठाकरे जी किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करते। उन्होंने अपने राज ठाकरे जी पे 20 साल ट्रस्ट नहीं किया। राज ठाकरे जी के आप इंटरव्यू निकाल के देखिए, वो बोलते कि आदमी मुझे पता है कैसा है। तो आज जनता भी देखती है कि आप 20 साल से अलग है, और सडनली आप एक साथ आते हैं चुनाव के लिए। और चुनाव में आपका एजेंडा क्या होता है? लोगों को गाली देना, लोगों को मारना। विकास का एजेंडा कुछ भी नहीं है। ठाकरे का वचननामा है, उन्होंने एक भी सभा में अपना वचननामे के ऊपर कोई विकास का काम नहीं किया। देवेंद्र जी ने जितने इंटरव्यूज किए, जितनी सभा की है, उन्होंने हर चीज में सिर्फ विकास की बात की है।
उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि ऐसा है। और देखिए राजीव जी, प्रदीप जी, एक सिंपल है, समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हम कोई मराठी मानुस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ये वो, हम ऐसे, हमारे कोई वोट बैंक नहीं है, पूरा भारत देश हमारा वोट बैंक है। तो अगर हम इस तरीके से चुनाव को हम विकास के साथ, विरासत के साथ भी अप्रोच कर रहे, तो जनता तो हमारे साथ आएगी ना। और ये कोई मतलब, मुझे आश्चर्य लगता है कि अभी तक ये यूबीटी वगैरह को क्यों नहीं समझ रहा है कि हमारे ऊपर से सब चले गया है। मतलब वो कहते हैं ना कि भाई सल्तनत लूट गई, लेकिन अभी भी लगता है कि हुकूमत हमारी है। हनूफ दिल्ली दूरस्थ, जी हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला ने बोला था, जी हाँ। ये मुंबई को अपनी जमींदारी समझते थे, मुंबई की जनता ने इनकी जमींदारी खत्म की है। जमींदारी मानसिकता है राजू जी, ये जमींदारी मानसिकता है जो भारत देश में कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंट करती थी और परिवारवादी पार्टी रिप्रेजेंट करती थी। जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि हमारी विकास की जो बात करेगा, हमारे चीजों पे जो काम करेगा, वो चुनाव जीतेगा। मैं आपको एक मानखुर्द का एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे मीडिया के प्रमुख थे नवनाथ बंद, वो पहली बार वहां से चुनाव लड़ रहे थे। मैं वहां एज ए इलेक्शन इंचार्ज गया था। तो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ अबू आजमी 15 साल से एमएलए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी, और हम वो सीट 1800 वोटों से जीते, जो कि 100 वोटों की मार्जिन। और हमको नवाब मलिक जी ने स्टेटमेंट दिया था कि नवनाथ बंद चौथे पे आएंगे। हर आदमी ने हमको राइट ऑफ किया था, लेकिन हम जनता के पास पहुंचे, घर घर संपर्क किया, हमने देवेंद्र जी का एजेंडा बताया। मैं आपको बता नहीं सकता राजीव जी, वहाँ की इतनी भयानक परिस्थिति है। शर्म मालूम है सर, ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ जनता को एक वोट बैंक करके यूज किया। मतलब आपके पास मैं वीडियो पर्सनल आपको भेज दूंगा कि इतने भयंकर जनता को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और भारतीय जनता पार्टी, नवनाथ बंद जो जीते वहाँ, आप देखिए वहाँ कैसा विकास होगा। आजू बाजू के वार्ड्स भी हमारे पास आने वाले हैं। समीर बागरे साहब, जो आपने कहा है ना अभी, वी हैव डन अ शो ओवर देयर, प्रदीप जी एंड आई, वी हैव डन सेवरल शोज फ्रॉम मंगकोट। उसके सामने डंपिंग ग्राउंड भी है सर, यू कांट इवन ब्रीथ द एयर, वहां पे आप सांस नहीं ले सकते। आपने देखा होगा, देयर आर सो मेनी फ्लाइज ऑल अराउंड, इतनी मक्खियां हैं, इतनी गंदगी है। मैं वही बोल रहा हूं, 15-15 साल से आप एमएलए हैं, क्या काम कर रहे हैं वहां पे? दो साल से झाड़ू नहीं लगी है वहाँ, दो साल से झाड़ू नहीं लगी वहाँ पर, स्ट्रीट लाइट नहीं है। आर यू ट्रीटिंग, मतलब लोगों को जानवर से ज्यादा बदतर ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए ये पार्टीज को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे। लास्ट टाइम की वहाँ की नगर सेवक ये उबाटा की है, तो उन्होंने क्या किया इतने साल? मेरे को तो मतलब मैं ऑफिस में बैठता था तो वहाँ तो बाजू में 50 मच्छर घूमते थे। तो आप आज ऐसी लोगों को क्या बना के रख दिया आपने? तो क्यों महायुति और भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट नहीं करेंगे जब वो विकास की बात करते हैं? संजय द्विवेदी जी, कोंकण पूरा का पूरा साफ हो गया सर। बाला साहब ठाकरे का गढ़ था कोंकण जो था, वो हमेशा यही कहते थे, बाकी सब जाए, कोंकण मेरे साथ रहेगा, कहते थे। जब तक नारायण राणे अलग नहीं हुए थे, उसके पहले तक कहा करते थे। एक बात कही हमारे कि साहब बीएमसी में जो था फंड था 2.5 रुपए, उसकी एफडी क्यों करा दी? लोगों के काम में खर्च करना चाहिए था, तो इन्होंने 3 साल में 50% फंड उससे निकाल लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ साहब, बीजेपी कोष में 10,000 करोड़ का फंड क्या कर रहा? इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए फंड क्या कर रहा? प्रधानमंत्री राहत कोष में करोड़ों रुपए का फंड क्या कर रहा? क्या कर रहा फंड? भाई उसको निकालिए। गरीबी है, बेरोजगारी है, 95 रुपए हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, 100 रुपए डीजल हो गया, 1000 रुपए में आपका टोटल कोई फैक्ट हो गया, जिसके लिए आप सर पे रख के टहला करते थे। नहीं साहब, ज्यादा रेट, ज्यादा 55 रुपए पहले था डॉलर का, अब 95 रुपए हो गया। तो भैया ये हो गया तो काय हो रहा है भाई? 10-10 हजार करोड़ का मतलब हुआ पूरे देश के आपने जितने व्यापारी थे सबसे आपने पैसा ले लिया, चाहे बीफ वाले हो, चाहे जो भी हो, सबसे आपने पैसा ले लिया। तो मार्केट में आपने तो आपके हाथ से तो निकल गई ना, मार्केट आपके हाथ से निकल गई। आपको आपका जो 2014 में क्या रेट था, या सोने क्या रेट था, या सामानों क्या रेट था, 2025-26 में क्या रेट है, वो आप निकाल के देख लीजिए। आप कहते हैं विकास हम कर रहे हैं, अच्छी बात विकास कर रहे हो, तो 7,500 रुपए क्यों बांटे थे आपने विधानसभा चुनाव में? 7,500 रुपए बांटे। 10 गारंटी आपने क्यों दी थी भाई, कि हम 10 गारंटियां दे रहे हैं कि लाडली बहनों 2100 रुपए देंगे, श्री भोजन थाली कराएंगे, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, 25,000 नौकरियां देंगे, बिजली बिलों 30% कटौती करेंगे।
किसानों के ऋण माफ करेंगे, तमाम ऐसी घोषणाएं आपने की थी। क्यों की थी फिर? जब आप विकास बढ़ रहे हो, विकास ही आपका मुद्दा है, तो 10,000 रुपए आपने क्यों बांटे बिहार में? द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, क्यों बांटे पैसे आपने? द्विवेदी जी, बिहार में तो हद खत्म कर दी। उद्धव जी का मैनिफेस्टो, द्विवेदी जी, उद्धव जी का मैनिफेस्टो, उद्धव जी का लागू होने के बाद 4 तारीखों में वहाँ पैसा बांटा गया और चुनाव हो रहा है। उद्धव जी के मैनिफेस्टो, द्विवेदी जी सुनिए ना, आज जो कह रहे हैं साहब, आपका मैनिफेस्टो सबसे अच्छा मैनिफेस्टो था। पार्टी का नाम क्यों दिलाया था? उद्धव जी के मैनिफेस्टो सबसे अच्छा मैनिफेस्टो था। सुनिए द्विवेदी जी, उद्धव जी का और राज ठाकरे जी का मैनिफेस्टो सबसे अच्छा मैनिफेस्टो था, इसीलिए कि देवेंद्र फडणवीस जी ने 40,000 घर प्रॉमिस किए थे, अफोर्डेबल हाउसिंग 7 साल में पूरे स्लम फ्री कर देंगे, मगर आपने 1 लाख घर प्रॉमिस किए थे, 1 लाख घर। आपने कहा कि मिनिमम बस फेयर हम 5 रुपए में लेके आएंगे वापस, हेल्थ केयर, हर जो बीएमसी के हॉस्पिटल है उसको नया मेडिकल कॉलेज बना देंगे, 10,000 आप इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस करने वाले, 100 यूनिट फ्री बिजली आप देने वाले थे, और 1,500 रुपया जो आप बोल रहे हैं, 1,500 रुपया कोली में बहन है हमारे, उनको 1,500 देंगे, और जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनको 1,500 रुपया पर मंथ, यानी लाड़की बहन में जो सुशील व्यास जी और समीर बाकरे साहब इंट्रोड्यूस किए, आप बीएमसी में इंट्रोड्यूस करने वाले थे। तो ये लोग विश्वास क्यों नहीं किए देव जी, क्यों नहीं विश्वास? देखिए, विश्वास क्यों नहीं किए? विश्वास न किया होता तो 15 सीटें तो हम हार गए, तो कम मार्जिन में, और बहुत जगह चाहे आप पूरे महाराष्ट्र में देख लीजिए, कम मार्जिन से हम सीटें हारे हुए हैं। 15 से 20 16 सीटें हम यहाँ बीएमसी में हारे हैं। अगर ना हारे होते भाई, हमारा 2017 में भी तो हमारे पास 84 सीटें थी ना। हमारे पास 2017 में हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे, हमारी 84 सीटें थी हमारे पास भी। अब राज ठाकरे के साथ लड़े, क्योंकि जो राज ठाकरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देते हैं और ये समर्थन लेते हैं। अभी बात चल रही थी कि भाई कहीं पे भी नगर पालिका में हम राज ठाकरे के हमारे सभासद आ रहे हैं, बड़ी खुशी मना रहे हो भाई। जब राज ठाकरे गलत है, हिंदी विरोधी आदमी है, मारपीट करते हैं, दुनिया भरे काम करते हैं, तो उनके पार्सल लेने का वो क्या जरूरत है? आप उनके जब आपका मौका है तो आप पीडीपी से गठबंधन कर लो, और आप जेजेपी से गठबंधन कर लो, मायावती से गठबंधन कर लो, अकाली दल से गठबंधन कर लो। और हम अगर कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं तो कांग्रेस क्या राष्ट्र विरोधी पार्टी है? एनसीपी की बात कर रहे हो, एनसीपी का जीता पवार है, जिनका चुनाव चिन्ह नाम सब आपने ले लिया, जिनके लिए कहते थे सब चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ के घोटालेबाज माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, माने प्रधानमंत्री जी कहते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, महंगाई मिटा देंगे, बेरोजगारी मिटा देंगे, और पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपए कितने रुपए है डॉलर के दाम और कम कर देंगे। बात ये नहीं, डॉलर के दाम अगर 55 रुपए जब थे, 50 रुपए थे, तो प्रधानमंत्री सारी इज्जत गिर रही थी, प्रधानमंत्री के सर गिर रहा था। Right, so let me just one second before I go, जी संजय द्विवेदी जी, before I go, 95 रुपए जी दुरुस्त बात है, दिक्कत नहीं है जी, न महंगाई चिंता न किसी, ठीक है आपको वोट मिल रहा है। द्विवेदी जी, so let me go to सर समीर बाकरे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड, मुकेश गांधी साहब आ रहा हूँ आपके पास। समीर बाकरे जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बांट रहे हैं पैसे, तो इसका सर समीर बाकरे जी बोलिए सर प्लीज, मुझे बता दीजिए। समीर बाकरे साहब, और सिंधी व्यवस्था बैठे हुए समीर बाकरे साहब, उसमें कितनी समीर बाकरे जी बोलिए सर, समीर बाकरे जी कुछ बोलना चाह रहे थे, दी गई थी, उसमें कितनी गारंटी पूरी दोनों लोग मुझे अब आप जवाब भी सुनिए ना द्विवेदी जी। समीर बाकरे जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप प्लीज। राजीव जी, सिर्फ एक लाइन, संजय भाई को आपने जो सवाल पूछा उसमें उन्होंने सिर्फ हमारे ऊपर बात की, उन्होंने खुद के पार्टी का ना विजन बताया ना ये बताया। इसलिए देवेंद्र जी ने क्या कहा था कि एक साइड में कंफ्यूजन और करप्शन है, दूसरे साइड में विजन है, और हमारी गारंटियां गिनाने के कारण उनका समय बर्बाद न करते हुए आप अपना विजन दिखाए। अगर जनता के पास हमारी गारंटियां पहुंची नहीं रहती और काम नहीं हुआ रहता तो जनता ने हमको रिजेक्ट किया रहता, तो हम तो जनता के पास जाते हैं। तो संजय भाई को संजय भाई आपको पूछा गया कि क्यों नहीं सीटें दी आपको? 29 सीटें सिंधे जी को मिली, क्यों 29 सीटें मिली भाई? क्या जवाब है? पूरा कब्जा कर लेते हैं, क्यों नहीं कर पाए? आपके एक भी एजेंडा नहीं है ना, आपके पास एजेंडा क्या बचा है?
सिर्फ लोगों नहीं, को हमारे पास तो मारना, कुछ सिर्फ नहीं है। लोगों को मारना। जब आप जो है आप- सीबीआई भाई, ईडी एजेंडा तो 50 खो के एजेंडा मुख्यमंत्री का पद, बताइए, मंत्री का एजेंडा पद, बताइए। जो 70,000 करोड़ का के एजेंडा बताइए घोटालेबाज है, संजय भाई। जो आपकी घोटालेबाज है, पुरानी जिनको कैसेट, चक्की पिसवा आपकी देंगे, पुरानी वो आपकी कैसेट पार्टी अभी मांगे बंद कीजिए। 2,000 आपकी करोड़ का पुरानी ईडी कैसेट लोग बंद कीजिए, कैसेट बंद कीजिए कैसे आपकी छूट गया पुरानी। भाई? अभी जनता के मतलब पास जब वो उद्धव जी नए ठाकरे चीज के समय साथ थे, जाइए। Gentlemen, जनता के shall पास I, नए चीज के साथ I जाइए। need to give some figures. भ्रष्टाचारी थे वो, तो वो भ्रष्टाचार संजय द्विवेदी जी, मुझे कुछ आंकड़े देने बंद कीजिए दीजिए। लेकिन संजय द्विवेदी जी आप हार गए। कैसेट हो गई है। भाई अजीत संजय द्विवेदी जी आप हारे हैं, आप हार गए। क्यों अलग हो गए? संजय द्विवेदी जी आप हार गए। क्यों शरद पवार जी के साथ में? संजय द्विवेदी जी आप हार गए हैं। आपकी तो विफलता- पुरानी बात हो गई ना सर, अभी की बात करें आपकी मायावती- सर, अभी की बात करें। अगर ये बात करनी है तो बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी का भी सपोर्ट किया था, तो क्या हो गया उसमें? ये पॉलिटिक्स है सर। Now here I must say this is for our viewers, which is very very important. Before I go to Mukesh Gandhi Sahab, the FD, the fixed deposit amount of the BMC was 82,737.15 crore in 23-24, which came down to 79,498 crores in 24-25, and at the moment, Sameer Bagre Sahab, please note, Sushil Vyas ji, please note, it stands at 81,774 crores. मतलब के 1,000 करोड़ सिर्फ खर्च हुआ है अभी तक। जो बोल रहे थे ना एफडी तोड़ दी, इधर पैसे बांट दिए, इधर पैसे बांट दिए, सिर्फ 1,000 करोड़ खर्च हुआ है यार सिर्फ पिछले 3 साल में। आई मीन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? उसमें क्या क्या बना है? कोस्टल रोड बनी है, उसके अलावा बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने हैं, उसके अलावा जो नया सेंट्रल पार्क जो बन रहा है बिटवीन महालक्ष्मी एंड प्रियदर्शनी पार्क, दैट्स गोना बी ह्यूज। मुकेश गांधी साहब आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बाला साहब ठाकरे के साथ थे, मैंने खुद देखा है आपको, 10 साल तक आप बाला साहब ठाकरे के साथ थे। यू आर वेरी क्लोज टू हिम, यू यूज्ड टू बी एट हिज हाउस एवरी सेकंड थर्ड डे। आप मुझे बताइए मुकेश गांधी साहब, कोंकण गढ़ था बाला साहब ठाकरे का, बाला साहब ठाकरे ये बोलते थे मुझे हर एक कोई छोड़ सकता, कोंकण नहीं छोड़ सकता। आज कोंकण में भी नहीं है उद्धव ठाकरे, ये क्या हो गया? ये बताइए ना आप मुकेश गांधी साहब। देखिए राजू जी, मैं बाला साहब के साथ पूरा महाराष्ट्र में कई बड़ी बड़ी सभाओं में गया था साथ में, और बाला साहब के एक एक शब्द को सुनने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग आते थे। और कोंकण में तो इनका इतना दबदबा था, थाना में उतना इनका दबदबा था। अरे यहाँ हमारे गुजरात में जब पहली सभा उनकी सिलवासा में हुई तो वहां भी इतना उनका दबदबा था। पर उद्धव ठाकरे जी ने कभी भी कोई ऐसी बड़ी सभा ली नहीं, कोई विचारों का कम्युनिकेशन किया नहीं। और ये सारी बातें अभी जो भी हुआ है, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि मुंबई का जो ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन जो हुआ है वो बहुत तटस्थ हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है और लोगों ने वर्डिक्ट दी है। और दुख की बात ये क्या है कि आज मुंबई मराठी, नॉन मराठी, हिंदू, मुस्लिम ऐसे ग्रुपों में बंट गया है। तो मुंबई को एक रखने वाली अगर कोई शक्ति होगी तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस है कि ये लोगों में विग्रह नहीं होने देंगे पर लोगों को साथ में रखेंगे। क्योंकि एक तरफ करप्शन और कंफ्यूजन है और दूसरी तरफ विजन एंड एक्शन है, और ये विजन और एक्शन के साथ में यूनिटी ऑफ मुंबई पीपल्स टुगेदर, ये अगर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारा मुंबई सेफ रहेगा, प्रगति करेंगे। आज पालघर के पास में हमारे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मुंबई में इतना बड़ा बड़ा फंड आ रहा है। आज मुंबई की आम जनता की सुख सगवड़ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रोड के माध्यम से भी बढ़ने वाली है। तब ये मैं संजय द्विवेदी के और उद्धव ठाकरे जी के और सभी कांग्रेस के लोगों को एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि भैया आप जो विकास का कार्य हुआ है उसमें सहयोग न दे तो कुछ वादा नहीं है, आप अपने घर पे रहे और रोड़ा डालने का काम अब बहुत कीजिए, क्योंकि इससे आम जनता को तकलीफ होती है। आम जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं इतना कहूं कि मुंबई आमची आहे, मुंबई आपली आहे आणि मुंबई शांत आणि स्वस्त आणि प्रगतीची आहे, हेच माझा विश्वास आहे। बाकरे साहब, बाकरे साहब, I want to ask you one final question. Why जो आपने लाडकी बहन स्टेट में इंट्रोड्यूस किया था,
they wanted to, Uddhav Thackeray ji wanted to introduce in the BMC. राजीव जी, बोला कि हम 1500 रुपया मैं for कोली वुमन as well as for the नमस्कार। domestic workers 1500 मैं देंगे. आपकी अनुमति लेना चाहता South हूँ। unit, नमस्कार। South unit Thank you to all. हम, if 100 units will be given to the people and where South Mumbai is concerned, उनके एजेंडा में थे. तो ये पॉपुलर स्कीम्स थे. Why do you think that things failed? One flat, one parking. ये भी बहुत पॉपुलर स्कीम है. तो ये पॉपुलर स्कीम कैसे फेल हो गया? वे उद्धव ठाकरे इज कंसर्न. देखिए क्विकली प्रदीप जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता क्या देखती है. एक तो ये जो वादे कर रहे हैं वो कितने प्रैक्टिकल है और वादा कर रहा है वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. तो इनके पास आप कोई फ्लैट स्कीम में जो फ्लैट स्कीम बनी है तो क्या आप वहां नई बेसमेंट करने वाले थे? तो आपके पास तो उसका कोई जवाब नहीं है ना. तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? और दूसरी बात है कि उद्धव जी के पास 25 साल में दिखाने के लिए अगर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है. उन्होंने मराठी मानुस को मुंबई के बाहर आके भेजा है. पत्रा चौल में घोटाला हुआ है. देवेंद्र जी ने यहाँ बीडीडी चौल में लोगों को घर दिए. रमाबाई अम्बेडकर नगर, अभ्युदय नगर में भी मिलने वाले. तो देर आर ओनली टू थिंग्स विच पीपल बिलीव. व्हाट इज योर ट्रैक रिकॉर्ड एंड व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी. और सेकंड थिंग है कि प्रॉमिस करने वाले कौन है. तो उद्धव ठाकरे जी के पास दोनों नहीं था, ना विजन था ना ट्रैक रिकॉर्ड है. तो उनके पास दिखाने के लिए क्या है? उनके पास सिर्फ ये है कि भाई मैं हूँ, मेरा बेटा आदित्य ठाकरे, उधर राज साहब ठाकरे, उनका बेटा अमित ठाकरे. तो इनके जो भी पोस्टर्स है उसमें चारों लोग ठाकरे ही है. तो जब परिवारवादी पार्टी दिखती है, लोगों को जब दिखता है कि भाई इनके पास है क्या, ये साथ भी क्यों आए, अपना परिवार बचाने के लिए आए, कोई मुंबई के लिए नहीं आया. ऐसे कौन से सवालों पे एक साथ इन्होंने आंदोलन किया? तो पहले तो ये चुनाव से 4 महीने पहले साथ में आते और 20 साल के जो इश्यूज है वो बाजू में रखते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने चांद भी प्रॉमिस किया रहता तो जनता इन पे विश्वास नहीं करेगी. क्योंकि जनता ये जानती है कि जब इनके पास बीएमसी के समय सत्ता थी, जब राज्य में भी महायुति की सरकार थी, तब भी ये कुछ नहीं कर पाए. तो अभी क्या करेंगे? और संजय भाई बोल रहे थे कि हम उनके साथ थे. 2017 में हमने आपका मेयर बनने दिया था, हम आपके साथ नहीं थे. हमने एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन एसोसिएट का रोल प्ले किया था. हम कोई सत्ता में आपके साथ भागीदार नहीं थे. तो आप वापस लेना चाहिए था ना. 2017 उद्धव ठाकरे जी ने अलग हो गए ठाकरे जी ने तो समर्थन वापस ले लेते ना. भ्रष्टाचार कर रहे थे ना भाई, हम भ्रष्टाचार कर रहे थे बीएमसी में और कोई काम नहीं कर रहे थे. दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है तो संजय भाई. समर्थन वापस लेना चाहिए था. आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है. आप सिर्फ निगेटिव बात करते हैं. आप निगेटिव बात करते हैं. कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है. विपक्ष बात करना, पॉजिटिव एजेंडा न रखना. देखिए प्रदीप जी इनके बीच में मैं बोलता नहीं है, बार बार पीछे बोलते हैं. जो नेता आरोप लगा देते आपकी बात आ गए तो वो दूध के संजय भाई, ये कौन सी राजीव भाई भ्रष्टाचार का नारा किसने दिया था? संजय भाई सुनने की आदत डाली है. Right. लेकिन जमीर बागरे साहब, I must congratulate you. तो क्यों दिया था भाई? Great performance from the Modi government. There is no doubt about it. The Modi government has done remarkably well, especially on the economy. और IMF, which never upgrades an economy. IMF International Monetary Fund कभी भी इकोनॉमी को अपग्रेड नहीं करता है. अभी तक वो बोल रहे थे India will grow at 6.8%. Now they have said 7.3%. Tell me about why in the history of the International Monetary Fund, India has been upgraded to 7.3%. And it is absolutely amazing. So there is no doubt about it. Yes. Absolutely no doubt about it. सुशील व्यास जी लाडकी बहन Right, लाडकी बहन का कॉपी करके Thank you, उद्धव sir. ठाकरे जी, राज ठाकरे जी बीएमसी में इनकॉर्पोरेट करने वाले थे. बोले 1500 रुपया हर महीना हम लोग देंगे जी. जो हमारी कोली बहनें हैं और डोमेस्टिक वर्कर्स हैं. 100 यूनिट फ्री देंगे व्यास जी, 100 यूनिट फ्री देंगे जो साउथ मुंबई से शुरू करेंगे. फिर बीएमसी को बीएसटी को बोलेंगे कि आप सबब्स में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो. 700 स्क्वायर फीट तक प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ, ये प्रॉमिस किया था उद्धव ठाकरे जी. व्हाई डज इट फेल? व्हाई डिड इट फेल व्यास जी? आप नहीं, फेल तो उनको मौका ही नहीं मिला ना उन चीजों को पूरा करने का. फेल तो जब होता है जब उनको मौका मिलता है वो नहीं करते. मुंबई की जनता समझ गई कि ये तो सब भूल भलैया है, इसमें कोई दम नहीं है, तो जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया. और अब सवाल ये है कि बीएसटी की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की जहां तक सवाल है, रामबिहारी जी कितने वर्षों से हम सब लोग मुंबई शहर में हैं, कम से कम 25 साल तक तो इनका खुद का अपना वर्चस्व रहा है महानगर पालिका में. तब क्यों नहीं उपनगर के लोगों को कहा कि बीएसटी वाले वहां सप्लाई कर दो? तब क्यों वहां प्राइवेट ऑपरेटर्स के
माध्यम से सप्लाई करवाई इलेक्ट्रिसिटी की। ये सब सारी बातें जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, उस तरह के उन्होंने आश्वासन जनता को दिए। जनता भी समझ गई ये भूल भलैया है और उन पर ना विश्वास करते, उनको कोई विश्वास और साथ और सहयोग उनको दिया नहीं। व्यास साहब चलते चलते ये भी बता दें कि जहां तक कि एकनाथ शिंदे साहब का सवाल है, अब ये तो आप कहें कि भाई खींचतान नहीं हो रही, खींचतान तो हो रही है सर, वेदर वी लाइक इट और नॉट। आप केडीएमसी में और ठाणे में आप प्रेशर डाल रहे हैं बीजेपी पे, बीजेपी आप पर प्रेशर डाल रही है बीएमसी में, और बाकी जगह पर बीजेपी आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है जहां जहां पे बीजेपी जीती है। सो व्हेन विल इट एंड? व्हेन मिस्टर फडणवीस रिटर्न्स फ्रॉम डावोस, or will it end when Delhi decides who the Mumbai mayor will be? Sir. बजाज जी, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं जिस पे हम लोग अभी तक बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं चर्चा में, वो ये है कि मुंबई का मेयर कौन होगा, किस वर्ग से होगा, इसका फैसला कल सुबह 11 बजे होगा। चलिए, जब नगर विकास मंत्रालय में छठे माले पे मंत्रालय में लॉटरी निकाली जाएगी कि मेयर कौन से वर्ग से आएगा। अब उसके बाद ये तय होगा कि उस वर्ग का कोई उचित उम्मीदवार बीजेपी के पास है या सेना के पास है या नहीं है। ये सारी चीजें कल 11 बजे के बाद लॉटरी निकलने के बाद होगी। तब तक महायुति का मेयर सब जगह आएगा जहां जहां हमने वर्चस्व जनता के आशीर्वाद से प्राप्त किया है। दुरुस्त बात है, फैंटास्टिक। राइट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। उदाहरण के लिए बजाज जी, मैं सिर्फ आधा मिनट चाहता हूँ। बोलिए। कि मान लीजिए कल लॉटरी में मुंबई का मेयर एसटी आ गया, शेड्यूल्ड ट्राइब। यस, तो अब शेड्यूल ट्राइब के लिए तो 2 ही सीट रिजर्व है और दोनों सीट उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जीती है। तो अब आप क्या समझते हैं उसका क्या करना चाहिए? तो उद्धव जी का मेयर बनेगा, दैट्स इट। ऑपरेशन मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल कोई चीज का जवाब जब हो सकता है जब वो लॉटरी निकल जाए। तो द्विवेदी जी ऑपरेशन टाइगर से संभालिए। द्विवेदी जी, अगर एसटी का आ गया, अभी का एक ही कैंडिडेट है बीएमसी का, सिर्फ उद्धव जी के पास है कैंडिडेट। वो डॉक्टर बहन कहाँ है जो 157 कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मजबूत हो गए सर। हमारी महाविकास अघाड़ी जिंदाबाद है और अब कोई दिक्कत नहीं। 65 सीटें हमको दी है, 15 सीटें हम हार गए कम मार्जिन से। आप लोग तो देख रहे होंगे कम मार्जिन से हम हारे, तो हमें महाराज की जनता ने बीएमसी में पूरा समर्थन दिया। ऐसा नहीं कि समर्थन, अब आप कुछ भी सोचे, बीजेपी कुछ भी सोचे, हमको ये दिया वो दिया, कुछ भी सोचे, तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारे जो कार्य थे, हमारे जो जी बिल्कुल 2017 में लाए थे, हम 130 सीट तो लाए नहीं थे। ये 140 सीट लाए होते, वो भी आज हमें 65 सीट मिल गई होती। तो सहयोग नहीं दिया। अब आ जाएगा 2-4 दिन बाद फैसला हो जाएगा, दोनों से निकल जाएगा। चिंतित है हम लोग। द्विवेदी जी, एसटी का कैंडिडेट आपके पास है या एकनाथ शिंदे जी के पास है अभी? नहीं, देखिए ऐसे कानून में ऐसा सर है, कोई ये जानता नहीं है कि देखिए सुनिए प्रावधान यह है ना एसटी ना मराठी जो दिल्ली तय कर देगी, जो दिल्ली तय कर देगी वो तय हो जाएगा सर किसका बनना है। ना कोई लॉटरी ना लाटला, जरूरी ना कोई लॉटरी नहीं है। असल में शिंदे वाले जो है वो सोच रहे हमारे लॉटरी निकल जाए, हमारा बन जाए, लेकिन वो छोड़ दे, वो सब चमचागिरी करे, वो सिर्फ चमचागिरी भारतीय जनता पार्टी करे और कुछ ना करे, चमचागिरी करे। एसटी होना चाहिए, हमारे पास है 4-5 वही उनका काम है। Right, gentlemen, thank you very much. नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हर हर महादेव, नमस्कार, जय भवानी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। नमस्कार, नमस्कार द्विवेदी जी। वो मिलते द्विवेदी जी नमस्कार, आपकी बात आ गई सर। अरे द्विवेदी जी आपकी बात आ गई। हर हर महादेव, थैंक यू सर, नमस्कार। Right, that's it. That's all we've got for you as far as tonight's show is concerned. Lots and lots of things over there. Now, you see, the point is, everywhere else, if you look at it, the Uddhav Thackeray Sena does not even exist. बाकी पूरे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, खानदेश में, विदर्भ में, अपने पूरे मराठवाड़ा में, पश्चिम महाराष्ट्र में, कहीं पर भी नहीं है। And they lost the entire Konkan belt, sir. कोंकण, सिंधुदुर्ग हो गए, रायगढ़ हो गए, रत्नागिरी हो गए, everywhere they have lost, totally decimated. That's right, and so I think Mr.
Raj Thackeray really and truly will have to rework as to what he plans to do. Let's be very, very clear. I mean, it's not. And as if- probably he doesn't have the strength to control his candidates who have won. his own people. Yes, apart from Mumbai, I don't think he can control anywhere. Even Kalyan, Dombivli ho gaya. another- Even in Mumbai, sir. Yes, yes. So he knows even if he says, I'm going to take strict action, these good guys are going to deflect. Ji. Defect. Right, so that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप प्लीज जरा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक प्लीज डू प्रेस ऑन द सब्सक्राइब बटन प्रदीप When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. नेशन नाउ The fastest growing channel of the nation, Nation Now. और प्रदीप जी और मेरी तरफ से पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भवानी जय शिवाजी वंदे मातरम Vande Mataram. भारत माता की जय जय हिंद Jai Hind.